Good morning, students. In the last lecture, we have studied in 309 computer communication TCP IP model part 1. In this lecture, we will continue the study and go through the part 2 of the series, and after that lecture, we will go through the third part of the TCP IP model. Hence, as I stated you previously, TCP IP model is divided into three parts. So, here part 2. In part 1, we have studied there are the four layers in the TCP IP reference model, out of which we have studied about the link layer, that is the bottommost layer, that is also called the network interface, and the remaining three layers successively from bottom to top are internet layer, transport layer, and application layer. So by virtue of our previous study, we will continue it. In the TCP IP model, when we compare it from the ISO OSI model reference model, there are the 7 layers in the ISO OSI reference model, that is called physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and application layer from bottom to top. The corresponding layer at the bottom is the link layer corresponding to the physical or data link layer. In the TCP IP model, the network layer contains some famous protocols: ICMP, IGMP, IP, ARP, and RARP, which we will study in this particular lecture. Another thing which we go through in this lecture is the transport layer. Therefore, the layer number 3 from the bottom of the TCP IP model, and the protocols used in the transport model are the TCP and the UDP. At the top, there is only one layer in the TCP IP model, that is called the application layer, whereas there are the 3 layers in the ISO OSI model. These are called the session, presentation, and application layer. Corresponding to the application layer, the protocols used are SMTP, FTP, Telnet, DNS, SNMP, NFS, RPC, TFTP, about which we will study in the next lecture, that is called the part 3 of the TCP IP model. Now we come to the internet layer. इंटरनेट लेयर क्या होती है? लेयर नंबर 2, एंड इंटरनेट लेयर इज़ द सेकंड लेयर ऑफ द TCP IP मॉडल. TCP IP मॉडल की लेयर नंबर 2 इंटरनेट लेयर है. इंटरनेट लेयर एंड इंटरनेट लेयर इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द TCP IP मॉडल. TCP IP मॉडल की इंटरनेट लेयर दूसरे नंबर की लेयर होती है. एंड इंटरनेट लेयर इज़ आल्सो नोन एज द नेटवर्क लेयर. एक इंटरनेट लेयर को नेटवर्क लेयर का नाम भी दिया जाता है. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेट लेयर इज़ टू सेंड द पैकेट्स फ्रॉम एनी नेटवर्क एंड दे अराइव एट द डेस्टिनेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रूट दे टेक. इंटरनेट लेयर का मुख्य जो काम होता है वो यह होता है कि ये नेटवर्क्स में पैकेट्स का ट्रांसफ़र करती है, और चाहे वो कोई सा भी रूट ले, लेकिन वो डेस्टिनेशंस तक पैकेट अराइव होते हैं. फॉलोइंग आर द प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन दिस लेयर आर. इस लेयर के अंदर निम्न प्रोटोकॉल काम में आती है. IP प्रोटोकॉल. IP प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन दिस लेयर एंड इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द एंटायर TCP IP सूट. IP प्रोटोकॉल इस लेयर में काम में ली जाती है और पूरी TCP IP सूट का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है. फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द IP प्रोटोकॉल. इंटरनेट प्रोटोकॉल की निम्न जिम्मेदारियां हैं. पहली बात है IP एड्रेसिंग.
This protocol implements logical host addresses known as IP addresses. ये जो प्रोटोकॉल होती है वो लॉजिकल होस्ट एड्रेसेस को इम्प्लीमेंट करती है, जिनका के नाम IP एड्रेसेस होता है. होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, इट डिटरमाइंस द पाथ थ्रू विच द डेटा इज टू बी ट्रांसमिटेड. यह उस पाथ को डिटरमाइन करती है जिसके जरिए डेटा ट्रांसमिट होता है. डेटा इनकैप्सुलेशन एंड फॉर्मेटिंग. डाटा इनकैप्सुलेशन और फॉर्मेटिंग का काम भी IP प्रोटोकॉल के जरिए होता है. फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली. द लिमिट इम्पोज्ड ऑन द साइज ऑफ द IP डेटाग्राम by data link layer protocol is known as the MTU, maximum transmission unit. डेटा लिंक लेयर के द्वारा जो डेटाग्राम की जो साइज को लिमिट इम्पोज की जाती है उसको हम MTU कहते हैं, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कहते हैं. द लिमिट इम्पोज्ड ऑन द साइज ऑफ द IP डेटाग्राम बाय डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल इज नॉन एज मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट. राउटिंग. व्हेन IP डेटाग्राम इज सेंट ओवर द सेम लोकल नेटवर्क सच एज लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, व्हेन इट इज नॉन एज डायरेक्ट डिलीवरी. जब IP डेटाग्राम सेम लोकल नेटवर्क के ऊपर जाता है तो इसको अपन डायरेक्ट डिलीवरी कहते हैं. ARP प्रोटोकॉल. ARP स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. ARP का अभिप्राय क्या होता है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है. ARP इज द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू फाइंड द फिजिकल एड्रेस फ्रॉम द IP एड्रेस. ARP एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम IP एड्रेसेस की हेल्प से फिजिकल एड्रेस का पता लगाते हैं. द टू टर्म्स आर मेनली एसोसिएटेड विद द ARP प्रोटोकॉल्स. ARP प्रोटोकॉल्स के साथ में दो टर्म मुख्य रूप से एसोसिएट होती है. ARP रिक्वेस्ट. व्हेन अ सेंडर वांट्स टू नो द फिजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस, इट ब्रॉडकास्ट द ARP रिक्वेस्ट टू द नेटवर्क. जब एक सेंडर किसी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस जानना चाहता है तो वो नेटवर्क पर ARP रिक्वेस्ट भेजता है. ARP रिप्लाई. एवरी डिवाइस अटैच्ड टू द नेटवर्क विल एक्सेप्ट द ARP रिक्वेस्ट एंड प्रोसेस द रिक्वेस्ट, बट ओनली recipient recognize the IP address and sends back its physical address in the form of ARP reply. ICMP protocol. ICMP stands for Internet Control Message Protocol. ICMP का क्या अभिप्राय है? ICMP का अभिप्राय है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. It is a mechanism used by the hosts or routers to send notifications regarding datagram problems back to the sender. ये वो मैकेनिज़्म है जो कि होस्ट के द्वारा या राउटर्स के द्वारा नोटिफिकेशन सेंड करने में काम आते हैं. नोटिफिकेशन किस बारे में भेजा जाता है कि डेटाग्राम की प्रॉब्लम्स के बारे में वापस सेंडर को इंफॉर्मेशन या मैसेज भेजी जाती है ICMP के थ्रू. इन ICMP प्रोटोकॉल मेनली यूजेस टू टर्म्स. ICMP प्रोटोकॉल के अंदर मुख्य रूप से दो टर्म्स का उपयोग होता है. ICMP टेस्ट. ICMP टेस्ट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर द डेस्टिनेशन इज़ रीचेबल और नॉट. ICMP टेस्ट की मदद से ये पता लगता है कि डेस्टिनेशन रीचेबल है या नहीं है. ICMP रिप्लाई. ICMP रिप्लाई इज यूज टू चेक वेदर डेस्टिनेशन डिवाइस इज रिस्पॉन्डिंग और नॉट. ICMP रिप्लाई के जरिए पता लगता है कि डेस्टिनेशन डिवाइस रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं. द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ICMP प्रोटोकॉल इज़ टू रिपोर्ट द प्रॉब्लम्स, नॉट करेक्ट देम. ICMP प्रोटोकॉल की मुख्य जिम्मेदारी ये होती है कि प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट करना, उनको करेक्ट करना नहीं. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द करेक्शन लाइज विद द सेंटर. करेक्शंस की जिम्मेदारी सेंडर पर होती है.
इसके पश्चात हम TCP/IP मॉडल की तीसरी लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर का बारे में अध्ययन करते हैं। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी, फ्लो कंट्रोल एंड करेक्शन ऑफ डेटा विच इज़ बीइंग सेंट ओवर द नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी होती है रिलायबिलिटी की, सही तरह से जिम्मेदारी से काम हो, फ्लो कंट्रोल की, पैकेट्स की स्पीड से आएंगे जाएंगे, करेक्शन ऑफ डेटा को सही करने की जो कि नेटवर्क के ऊपर भेजे जाते हैं। द टू प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन द ट्रांसपोर्ट लेयर आर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो दो प्रोटोकॉल्स काम में आती है वो UDP और TCP होती है। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP, it provides connectionless service and end-to-end delivery of transmission। ये connectionless service और end-to-end delivery transmissions की provide करती है। It is an unreliable protocol as it discovers the errors but not specify the error। ये एक unreliable protocol है क्योंकि ये error को discover करती है, error को स्पेसिफाई नहीं करती, ये नहीं बताती कि कौन सी एरर है, केवल एरर का पता लगाती है। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल डिस्कवर्स द एरर एंड ICMP प्रोटोकॉल रिपोर्ट्स द एरर टू द सेंडर एंड द यूज़र डेटाग्राम हैज़ बीन डैमेज्ड। यूज़र डेटाग्राम क्या है, एरर का पता लगाता है, ICMP इस एरर को सेंडर को रिपोर्ट करती है कि यूज़र डेटाग्राम डैमेज हो गया है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP, it provides a full transport layer services to application। ये ट्रांसपोर्ट लेयर की सेवाओं को एप्लीकेशन को प्रोवाइड करती है। इट क्रिएट्स अ वर्चुअल सर्किट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर एंड इट इज़ एक्टिव फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसमिशन। ये सेंडर और रिसीवर के बीच में एक वर्चुअल सर्किट्स को क्रिएट करती है और ट्रांसमिशन के दौरान ये एक्टिव होती है। TCP is a reliable protocol as it detects the error and retransmits the damaged frame। TCP एक रिलायबल प्रोटोकॉल होती है क्योंकि ये एरर्स का पता लगाती है और डैमेज्ड फ्रेम्स को रीट्रांसमिट करती है। Therefore it ensures all the segments must be received and acknowledged before the transmission is considered to be completed and a virtual circuit is discarded। तो ये इस बात को इंश्योर करती कि सारे के सारे सेगमेंट्स रिसीव हो जाए और एक्नॉलेज हो जाए जब तक कि ट्रांसमिशन को कंप्लीट उसी समय समझा जाएगा कि जब सारे सेगमेंट रिसीव होके एक्नॉलेज हो जाए। वर्चुअल सर्किट डिस्कार्ड उसी के बाद किया जाता है। एट द सेंडिंग एंड TCP डिवाइड्स द होल मैसेज इनटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज सेगमेंट। किस सेंडर एंड के ऊपर, सेंडर के यहाँ पे, भेजने वाले के यहाँ पे होल मैसेज को TCP क्या करती है, छोटी यूनिट्स जिनको कि सेगमेंट कहते हैं उनमें डिवाइड कर देती है। एंड ईच सेगमेंट कंटेन्स अ सीक्वेंस नंबर विच इज़ रिक्वायर्ड टू रीऑर्डरिंग द फ्रेम्स टू फॉर्म एन ओरिजिनल मैसेज। और हर एक सेगमेंट में एक सीक्वेंस नंबर होता है जो कि ओरिजिनल मैसेज को वापस कंस्टिट्यूट करने में, बनाने में काम आता है। At the receiving end, TCP collects all the segments and reorders the based on sequence numbers। Receiving end पे TCP सारी segments को collect करती है और segment numbers के आधार पर, sequence number के आधार पर उनको reorder करती है। तो आज के इस अध्ययन के अंदर हमने मेनली दो लेयर्स के बारे में स्टडी की है TCP/IP मॉडल के, इंटरनेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। आउट ऑफ दी लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। आशा आपको इंटरनेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर समझ में आई होगी। और इंटरनेट लेयर की जो प्रोटोकॉल्स हमने देखी है वो IP प्रोटोकॉल मैंने देखी है, और IP प्रोटोकॉल के अलावा ARP प्रोटोकॉल, ICMP प्रोटोकॉल, ये मेजर हमने देखी थी। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमने दो प्रोटोकॉल देखी है, UDP प्रोटोकॉल और TCP प्रोटोकॉल। UDP अनरिलायबल, TCP रिलायबल। तो इसी के साथ धन्यवाद के साथ मैं आपका ये लेक्चर समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।